Okay, we have our friend here, Mr. Maha. Okay, I want to show some statistics. Okay, sir said retirement. Correct? No, I'm going to scare him now. इतना डराऊंगा सर को अभी. ओके, वो सोचने लगेंगे मैं क्यों आया यहाँ पे. सर डराऊं सर आपको? हाँ ना, आपने बोला रिटायरमेंट, रिटायरमेंट डरने की बात है, इसलिए कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को. ओके, उससे हम आज का डिस्कशन करेंगे. ठीक है? ओके, सर इज 37 ईयर ओल्ड. सर आप क्या काम करते हैं सर? यू वर्क फॉर सैलरी और यू आर हैविंग ओन बिजनेस? Salary, very good, even better for the example. Okay, sir is working. So when do you plan to retire, sir? So 60 years? to as soon as possible. As soon as possible. But first let us look at 60 years and then you can decide as soon as possible. Correct ना? पहले 60 साल का normal retirement age देख लेते हैं, बाद में we will decide on whether you can retire as soon as possible or not. Correct ना? It's a small challenge that we will take today. Okay, sir, look at the screen. Oh, please close the door, appa, because ये भाग नहीं, I'm just joking, because you might run away is what I'm saying after I show the numbers there. Okay, good. See, sir. Okay, next 2 years I'll be retiring. Okay, now my son, I've got only one son. Okay, he is married and is working, he's settled. Okay, now in my house only me and my wife. Okay, I don't have any rent to pay, I stay in my own house. I don't pay any EMI. Okay, loan कुछ नहीं है. Okay, only for me and my wife I have to earn. Correct? Normally, what do you spend on monthly? Okay, I'll show you. You should not add children expenses. Okay, because when you retire, you don't spend on children. Correct, yes, sir? Correct, no? You would have grown up. You have completed the responsibilities of saying own house. Correct, no? Retirement is what? Only husband and wife to spend. Okay. In Bangalore city, I spend money on these things. मैं इस सब के ऊपर महीना खर्चा करता हूँ. ओके, आपका घर में केबल टीवी है सर? वेरी गुड. कुकिंग गैस? वेरी गुड. इलेक्ट्रिसिटी बिल? वेरी गुड. सी, I also do same thing in Bangalore. Petrol for your vehicle? Very good. I also do the same thing. Flat, if you are staying in a flat, you have to pay flat maintenance, or I say independent house, so nahi liya hai. Okay, then general medicine, not sugar, BP medicine, normal. Okay, fever, stomach upset and all. Okay, then grocery, rice, pappu and all. Okay, then health insurance, very important. I pay 50,000 rupees per annum for health insurance for me and wife. Then internet, kavala? Kavala. Okay, internet, telephone, laundry, milk, newspaper, housemaid salary, vegetable, fruits, meat, vehicle maintenance. Okay, आपके पास vehicle है तो insurance भरना पड़ता है, और retirement होने के बाद भी हमारे पास गाड़ी रहती है. Correct ना? And then we will have to pay service, vehicle service. Correct, no sir? Wear and tear. Correct? After retirement, that continues. Then water bill, other expenses. I spend 30,000 rupees like this. Any doubt here? Don't ask me evening. Correct? No, people may thinking, okay, but I don't drink, but still, I've taken these expenses because my wife told me, you forgot to mention beauty parlor. Correct? No, you say you spend. I put that also. So, see, last one, madam, I put beauty parlor also. Okay. जब भी मैं अपना फोन, मैं वाइफ को फोन करता हूँ ना, घर में नहीं है, कहाँ है? ब्यूटी पार्लर में हो, गया 2000 रुपया मेरा. ओके, सो आई हैव टेकन ब्यूटी पार्लर. ओके, सी, ऑल दिस आर समथिंग दैट आई स्पेंड ऑन. ओके सर, एनीथिंग आई लेफ्ट आउट सर? कोई छोड़ दिया है ना? तजुर्बा है सर ये सब कर करके. ओके, सो टुडे, ओके, नेक्स्ट 2 years आई विल बी रिटायरिंग फ्रॉम एज पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट. करेक्ट नो? सो If I take today's expenses, आज का तारीख का जो खर्चा है ना, वो क्या है? 35,000 रुपया. करेक्ट ना सर? 35,000. Now Mr. Maha here is retiring when he is 60 years. कितना साल बचा है? 23 years बचा है. करेक्ट ना सर? करेक्ट नो? 37 minus 60 कितना बचा? 23 साल बचा. 23 years ना?
Nobody should run. If we run, please catch him. Okay. Now, inflation has to be taken. Inflation लेना है ना सर? Okay, correct. लेना है. लेना ही चाहिए. Okay. आज से 23 साल के बाद, 20 years from today, okay, I will take 5% as annual inflation. Just 5% annual inflation. Okay, sir. Now the 25 है ना, उसको मैं 23 कर देता हूं. ओके, बिकॉज आप 23 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं. आपका आज का जो 35,000 रुपया जो है ना, टुडे 35,000 रुपीज एट 5% इन्फ्लेशन 20 ईयर्स फ्रॉम टुडे, आप और आपके बीवी को पोस्ट रिटायरमेंट खर्चा करने कितना चाहिए सर? 1,07,000 रुपीज चाहिए. यू अग्री और नॉट अग्री? यू हैव टू अग्री. दूसरा चारा है ही नहीं, यही सत्य है. ओके. ना उसके नीचे एक परसेंटेज है, वो क्या है? 3% डाला हुआ वहां पे. वो क्या है ना, 3%. आज से 20-25 साल के बाद बैंक में जो आज के तारीख में मिल रहा है ना 6-7% आपको एफडी रिटर्न, 20-25 साल के बाद कितने हो सकते हैं? वो आज से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? मन बोलता है कि ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता. ओके. हम चाहते हैं कि डिपॉजिट रेट ज्यादा मिले. आप, आई एम आस्क ए क्वेश्चन, यू वांट फिक्स्ड डिपॉजिट हायर और लोअर? हायर और लोअर? वही सर, लोअर. So less than inflation. Huh? Less than inflation. No, that every country difficult. All countries in the world, inflation versus deposit rate is always difference. No country can provide you assured return above inflation. It's not possible. Okay. All of you want. मैं फिर पूछता हूं, आज के तारीख में 6-7% है फिक्स्ड डिपॉजिट रेट. ओके. इज इट, आपको खुश है ये डिपॉजिट रेट से? आप ना खुश है? आर यू हैप्पी, नॉट हैप्पी? 6% एफडी. नॉट हैप्पी? इवन द चाइल्ड इज सेइंग शी इज नॉट हैप्पी. फॉरगेट अबाउट अदर्स. यू आर नॉट हैप्पी सर? 6%? सर यू आर हैप्पी 6% सर? हैप्पी सर 6%? एनीवन हैप्पी 6%? नो? यू वांट मोर? ज्यादा चाहिए ना? ओके. आज कौन सा दिन है? शनिवार है. ओके. टेक ए विश. ओके. टेक ए विश दैट आई वांट डिपॉजिट रेट टू बी हायर. ज्यादा चाहिए. ओके. आज रात मैं फाइनेंस मिनिस्टर से बात करने वाला हूं. हैदराबाद गया तू, लोगों से मिला. क्या बोल रहे लोग? मैं बोलता हूं मैडम बहुत बेजार में है लोग, बहुत गुस्से में है लोग, क्योंकि डिपॉजिट रेट सिर्फ 6% मिल रहा है, उनको ज्यादा चाहिए. मैडम बिल से, अच्छा इतना कम है क्या? ठीक है, ज्यादा कर लेते हैं. लोगों का सुन के मैडम पूछती है कितना चाहिए लोगों को? टेल मी, आज आपका दिन है, आप बताइए कितना फिक्स्ड डिपॉजिट मिलने से आपको अच्छा लगता है? Tell me, wish. 20% per annum, fantastic. Anyone else? Bidding has started. 20% once. Anyone this side, madam? 30%. Huh? 30% per annum, correct na? Annual, correct. Anyone else here? Madam, annual interest rate. See, madam is very humble and, close to reality. Madam wants at 12%. All of you are okay sir? 12%? 20 or 30? जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा है, करेक्ट ना? सो मान लेते हैं. ओके. लेट्स टेक इट फॉर अस एग्जांपल दैट द फाइनेंस मिनिस्टर सेज डन. ओके. शी सेज डन. सो कल संडे, मंडे आप अपना बैंक जाएंगे, करेक्ट? आउटसाइड द बैंक दे पुट अ बैनर दैट फ्रॉम टुडे fixed deposit rate has become 15% per annum. Sorry sir, 20-30 कर नहीं पाए.
मैडम आप 12 पूछे 15 दे दिए, करेक्ट ना? द बैंक डिपॉजिट रेट बिकम्स 15% फ्रॉम मंडे ऑफ एट ऑल योर बैंक्स. आप खुश है? खुश होंगे? ऑल ऑफ यू हैप्पी? वेरी गुड. यस, दैट इज अ शाउट. यो ब्रो, गुड. Okay, it becomes 15%. All of you are happy, correct na? How old are you, my friend? 15, 20. Anyone about 30 years age here? How old? 31. About you? 40. Sir, don't tell me lie and all. You look like 27, 26. 40. Okay, you are 31, is it? Very good. What's your name, sir? Srinivas. You are 37, correct, sir? Now Srinivas and Maha, Tuesday, Monday को क्या हुआ? फिक्स्ड डिपॉजिट रेट 15% बन गए, करेक्ट ना? एवरीबडी इज हैप्पी. ट्यूसडे our friend here, Mr. Maha, and then Mr. Srinivas goes to the bank and says, मुझे एक हाउसिंग लोन चाहिए 40 लाख रुपए का. सर जाके पूछेंगे मुझे एक कार लोन चाहिए 10 लाख रुपए का, कितना इंटरेस्ट में मिल सकता है? अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लिटिल बताइए मैडम. 18%, करेक्ट ना? आर यू ओके सर? इफ द हाउसिंग लोन रेट बिकम्स 18%, car loan rate becomes 20%, are you okay sir? Happy? Will you buy a car? My friend, 30%, car loan becomes 18%, housing loan becomes 20% per annum. आप खरीदेंगे कार को? आप खरीदेंगे घर बनाएंगे 20% में? कोई एक धंधा शुरू करेंगे? Will you start a business 20 में borrow करके? अरे you are showing yo and all at 12-15%. No, समझ में आ गया ना? इंटरेस्ट रेट क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट रेट ज्यादा रहेंगे तो उसका नतीजा क्या होता है? लोन रेट्स भी ज्यादा हो जाता है. बिकॉज इंटरेस्ट रेट है ना, वो कॉइन का दो हिस्से. ओके, एक साइड क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट. दूसरा साइड क्या है? लोन रेट. ये ध्यान में रखिएगा आगे जाके, क्योंकि 25 साल पहले भारत देश में जो आज एनीवन 60 ईयर ओल्ड ईयर सर, आपको याद है सर 25 years ago how much was the deposit rate in Indian banks? See, 25 years ago. Today who is 30 years उनको याद नहीं है because वो बच्चे थे तब. So I know because I'm 58 years. I have also seen that particular time. Okay, bank deposit was giving you 14% return. And how much was the housing loan rate then? 18%. कार लोन 18%. इसलिए हमारा देश को अंडर डेवलप्ड कंट्री कहलाता थे. इंडिया वॉज अंडर डेवलप्ड कंट्री बिकॉज नोबडी वॉज बाइंग कार्स और ओनली वेरी फ्यू पीपल, थोड़े सी लोग खरीदते थे कार. इसलिए उस वक्त किसी का घर में कार होंगे तो वो रईस कहलाते. आज के तारीख में कार है तो रईस है क्या? अयो मेरे घर में 2 कार है भाई, तरकारी लाने के लिए कार में जाता हूं मैं अभी, करेक्ट ना? सी टुडे कार इज नॉट ए लग्जरी, एयर कंडीशनर इज नॉट ए लग्जरी, a 2-story building is not a luxury, but 25 years ago it was a luxury. Because today भारत देश को तेजी से बढ़ती हुई एक देश कहलाता है, फास्ट एमर्जिंग कंट्री. आप यहां आने तक तकलीफ ली ना, यो कितना ट्रैफिक है भाई हैदराबाद में. आई एम फ्रॉम बैंगलोर, डबल द ट्रैफिक देन हैदराबाद. यू नो, मैं जोक बताता हूँ बैंगलोर ट्रैफिक का. थोड़े महीने पहले मेरा दोस्त आया था पुणे से, ओके, आनंद जाजो करके. ओके, हिज वाइफ इज हैदराबाद एक्चुअली. ओके, ही केम दे एंड हिज वाइफ केम टू माय हाउस. वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट 20 years. घर आए थे, मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ने गया मेरे कार में. एयरपोर्ट छोड़ा, वो गए, हम गाड़ी निकल बैंगलोर में वापस आ रहे थे. 1-1.5 घंटे के बाद फोन किया आनंद ने, हम पहुंच गए पूना, आप कहाँ हो? मैं आधे रास्ते में हूं. वो पूना पहुंच गए, मैं अभी घर नहीं पहुंचा. दैट इज व्हाट इज बैंगलोर ट्रैफिक फॉर यू. ओके, नाउ इतना कार्स और व्हीकल देखते हैं रोड में हम लोग,
इतना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देख रहे हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं तरक्की. बिकॉज मनी हैज बिकम चीप टुडे. You can borrow money at 8%, 9% to buy a house, to buy a car, to get business loan आपको 8-10% मिल रहा है बैंक में. So people आगे जाके 15-20 years from today, सर को पता नहीं था कि जब वो 60 साल का हो जाएंगे बैंक इंटरेस्ट रेट 14% से 6% तक नीचे गिर जाएगा. सर को पता नहीं था. बट आप लोग जो यंग है मेरे जैसा, ओके, सो जब आप बड़े होंगे, जब आप बूढ़े होंगे, आप भी बूढ़े होंगे भाई, मैं अकेला नहीं हूं जो बूढ़े होने वाला हूं, ओके. जब when you become older, please don't think that interest rate will be higher. Interest rate will be lower. वही एक देश के तरक्की का एक सूचना है. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते गए, देश तरक्की, कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता. इसलिए आपको अमेरिका में, कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज में बैंक डिपॉजिट रेट 0.5%, 0.25%, 1% में आपको मिलता है. सिर्फ 1%. एफडी में, वहां एफडी चलती ही नहीं है. कौन डालेगा 0.5%, 1% एफडी में? तो भारत देश भी आगे 20-25 साल में 1-2-3% से नीचे रह सकता है. तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है. That is what is financial literacy. Okay? Now, sir needs 1,07,000 rupees per month when you retire. Correct ना सर? वो नीचे वो पीला कलर दिख रहा है ना, वही डराने वाली चीज, वो बाद में दिखाता हूं. अब 23 years from today, जब मिस्टर माहा रिटायर होंगे, उनको कितना अमाउंट चाहिए वो देखना पड़ेगा ना. बिकॉज रिटायरमेंट इज व्हाट, यू हैव अ मनी, फ्रॉम दैट यू विथड्रॉ मनी एवरी मंथ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. करेक्ट नो सर? व्हाट यू से, पेंशन. करेक्ट ना? दिखाओ सर को कितना चाहिए होंगे 21, 22, 23 साल के बाद. ओके, देखते हैं. देखिए सर, मुझे मत देखिए, वहां देखिए. All of you see 23 years from today how much Mr. Maha and his wife will need when they retire. क्या दिख रहा है आप लोगों को नंबर? 4.5 करोड़ रुपया चाहिए अप्रोक्सीमेटली फॉर रिटायरमेंट. ये कम पैसा है क्या? इसलिए बोला भाग जाएंगे सर, दरवाजा बंद कर दीजिए. सी सर सेट गोल इन लाइफ इज रिटायरमेंट. दिस इज अ गोल. ये गोल को अचीव करने के लिए हमको निवेश करना सीखना चाहिए. इसलिए जब मैं पूछा ना, आर यू इन्वेस्टर्स? यस यू आर इन्वेस्टर्स. बट कहां निवेश करते हो आप? वेयर डू यू इन्वेस्ट? मैं दिखाता हूं सबके साथ. ये गोल्स होता है. करेक्ट ना? घर बनाना, एक वेकेशन पे जाना, कार लेना, ओके, बच्चों का पालन पोषण करना, उसको अच्छा व्हाट इज एजुकेशन देना, ओके, और रिटायर होना. ये सब नॉर्मली सबका जिंदगी में गोल्स होता है. करेक्ट ना? जैसे आपने कहा कि रिटायरमेंट इज अ गोल. करेक्ट? चिल्ड्रन एजुकेशन, सर व्हाट इज द एज? 11 years. 11 years means you are in 6th standard. Correct na? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, you got 7 more years time, okay, to start your graduation. Correct na sir? Is it a goal or not, sir? Is graduation a goal or not? It is a goal. Okay. Now today, what do you want to become when you grow up? Engineer, doctor? Doctor. Stethoscope कहाँ है? Okay, you have a doctor here, future doctor here. Sir, you are aware or not aware? You are aware. You have to pay fees, no, sir, to become doctor. Correct, no, pa? How much will be the fees, sir? Like 50 lakhs, you will become half doctor, that's all. You cannot become full doctor, 50 lakh rupees. Huh? Yeah, is it small amount or big amount?
Your papa has to arrange 1 crore ma in 7 years. Every day ask him, Papa, doctor 1 crore, Papa, doctor 1 crore. Okay? It is a goal, my friend. Correct na sir? It's a goal. Okay? So, सरकार को पता है कि सब लोगों को इवेंट्स, आगे जाके इवेंट्स रहता है. करेक्ट ना? वो गोल्स को अचीव करने के लिए, करेक्ट, हमको क्या करना चाहिए? हमको निवेश करना चाहिए. वी हैव टू इन्वेस्ट. करेक्ट ना? क्या क्या दिया सरकार ने? सभी देश में यही होता है, नॉट ओनली इन इंडिया. सभी देश में ऐसा ही होता है. करेक्ट? दे प्रोवाइड अस. देखिए, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, लाइफ इंश्योरेंस, बैंक डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड्स. करेक्ट? इसके अलावा और कुछ है आपके मन में? डोंट टेल मी चिट फंड्स. ओके, करेक्ट ना? अभी ध्यान से देखिए, इतना ऑप्शंस है ना. फ्रॉम दिस ऑप्शंस, विच ऑप्शन लुक सिंपल टू यू? Which investment option looks complicated? Which are simple? Deposits are simple, very good. Insurance simple, very good. Property, all Andhra people, property is the easiest part. Half of Bangalore are owned by this Andhra people only. Okay. Real estate. Then, madam, gold you didn't say. Huh? Gold. Stock market नहीं बताया, आसान ही है. Complicated. Mutual funds? Subject to market risk. कारण यही याद आता है सबको. Mutual funds सबको आता है. हाँ, पता है ना क्या है? Subject to market risk सर. उसका जितना भी अच्छा ही है वो हम भूल जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट मार्केट रिस्क जो है ना वो हमको याद आ जाता है. करेक्ट ना? नाउ बिफोर आई गो टू अदर इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट, मैं गोल्ड के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं आप लोगों से. ओके, गोल्ड, इज इट एन इन्वेस्टमेंट और नॉट? है? व्हाट डू यू, योर पेरेंट्स आर स्पॉइल्ड यू. हाँ, वो बच्चे का जो सोच खराब कर दिए घर में माँ बाप ने. ओके, ये छोटा है, बता रहे गोल्ड अच्छा है, निवेश है. ओके, ध्यान से सुनिएगा. इज गोल्ड एन इन्वेस्टमेंट और नॉट? सर इज सेइंग नो 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 नो. यस और नो? हाँ, देन यू आर डेफिनेटली मैरिड पर्सन. फॉर ऑल मैरिड पीपल, देयर वाइफ्स हैव स्पॉइल्ड देम. राइट ना? किसी मर्द को क्या वो शक्ति नहीं है कि बीवी के सामने बोल सके कि सोना निवेश नहीं है. मैं भी शादीशुदा 22 साल हो गया, सॉरी 32 साल हो गया, सॉरी 32 years. So I understand the problem of all married people. Okay, now you say gold is an investment, correct ना? इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्या होता है? मतलब निवेश करके आगे जाके एक दिन वो बढ़ेगा. करेक्ट ना? द वैल्यू विल गो अप. करेक्ट ना? वो वैल्यू ऊपर जाने के बाद हम क्या करते हैं? यूजुअली बेचना चाहिए. करेक्ट ना सर? वेरी गुड. ऑल ऑफ यू आर ओके? यू इन्वेस्ट टुडे, एट वन डे इन द फ्यूचर द वैल्यू गोस अप, देन यू सेल इट. करेक्ट? एफडी मैच्योर होता है, क्या करते हैं आप? रिन्यू करते हैं या उसको वापस लेते हैं. करेक्ट ना? एक स्टॉक खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वो ऊपर जाते हैं, क्या करते हैं आप? बेचते हैं. रियल एस्टेट, खुद का घर छोड़ के अगर दूसरा साइट या घर खरीदेंगे, उसका भाव ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे? हम बेचेंगे. करेक्ट ना? अब बताइए, आज के तारीख में आप सोना खरीदोगे, करेक्ट ना? सोने का प्राइस ऊपर गया, बेचोगे आप? ऑल मैरिड मैन विल से नो ओनली सर. करेक्ट ना? बीवी पूछे कहां जा रहे हो भाई? सोना बेचने के जा रहा हूं. जाओ, वापस मत आना घर को. सोना बेचेंगे क्या हम लोग? फिर उसको निवेश क्यों कह रहे हो आप? इसलिए मैंने आपको चेकमेट करने के लिए पूछा. जब जो इन्वेस्टमेंट हम बेचते नहीं है उसको निवेश कैसे कह सकते हैं? हम उसको खरीदते हैं, निवेश करते हैं, बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. करेक्ट नो? या 10,000 रुपीज है आपके पास,
करेक्ट? मैं आपके सामने स्टॉक्स रखता हूं, आपके सामने गोल्ड रखता हूं, क्या चूज करेंगे आप? सी गोल्ड। सर से स्टॉक्स नॉट बैड, बीवी नहीं है इसलिए जोर से बोल रहा है। करेक्ट? नो, वी चूज गोल्ड इजीली बिकॉज इजी टू अंडरस्टैंड। स्टॉक खरीदने के तो 1000 सवाल पूछते हैं, गारंटी है क्या, कब तक रखना है, कितना प्रॉफिट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। गोल्ड खरीदने के टाइम हम कुछ भी नहीं पूछते, सीधा जाते हैं, खरीदते हैं और उसको अलमारी में स्टोर करके रख देते हैं। सी गोल्ड इज समथिंग वी आर कॉल्ड एसेट रिच एंड कैश पुअर। आपके पास है लेकिन आप उसको लिक्विडिटी नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि इमरजेंसी में काम आएगा, ठीक है, मान लेता हूं इमरजेंसी में काम आएगा। वो कौन सा इमरजेंसी है आपको सोना बेचने का नौबत आ जाए? बताइए, एक एग्जांपल बताइए। सर बोल रहे हैं मेडिकल इमरजेंसी। सर मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करके एक पॉलिसी है सर। सोना खरीद के कोई अस्पताल का बिल भरना, क्या बोलते हैं उसको, इट्स अ फूलिश थिंग टू डू, है कि नहीं? करेक्ट? नो सर। इज इट, डिड यू इन्वेस्ट इन गोल्ड टू पे हॉस्पिटल बिल? नो। देन व्हाई? दैट थिंकिंग हैज टू गो पीपल। दैट्स व्हाई वी आर नॉट बिकमिंग गुड इन्वेस्ट। वी आर ऑल वी आर इन्वेस्टर्स, दैट्स ऑल। हम अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं है, क्योंकि हम जो चूज करते हैं निवेश करने का वो हम गलत करते हैं। बिकॉज व्हाट इज इजी फॉर अस, फिक्स्ड डिपॉजिट इजी टू अंडरस्टैंड। क्यों? आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, वापस लेने के टाइम पे कितना पैसा आता है वो पहले से पता है। नो कंफ्यूजन देयर। आज तक किसी निवेशदार जो डिपॉजिट में निवेश किया है पूछा नहीं है कि ये इन्फ्लेशन से ज्यादा आ रहा है, इन्फ्लेशन से कम आ रहा है। आप ध्यान में रखते हैं क्या? बिफोर यू बाय अ फिक्स्ड डिपॉजिट, विल यू चेक इट इज गिविंग यू अबव इन्फ्लेशन, बिलो इन्फ्लेशन? नो। रिटर्न्स तो आ रहा है ना भाई, कुछ तो मिलता है। व्हेन यू बाय लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो 25 साल तक हम प्रीमियम भरते रहते हैं। आज तक हमने किसी से पूछा नहीं कितना एनुअल रिटर्न्स मिलेगा। मैं 1 लाख भरता हूं, 2.5 लाख मिलता है 25 साल के बाद। वही है, वो 2.5 लाख कितना एनुअल इंटरेस्ट में आ रहा है, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने बताया नहीं। वो इन्फ्लुएंस ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, वो हम कैलकुलेट किए ही नहीं। बट निवेश करें क्यों? कुछ पैसा आता है ना भाई, जो आता है आने दो, क्या पूछना। सी, वी आर हैप्पी विथ गेटिंग 5-6% रिटर्न ऑन अवर इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ मनी, लैक्स ऑफ रुपीज इज नीडेड। दूसरी बात यह है कि आप छोटे छोटे हिस्सों में आप रियल एस्टेट बेच नहीं सकते। आप जितना लेते हो उतना आपको वापस बेचना पड़ता है। करेक्ट? नाउ देखिए, बाकी सब स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स हमको डर लगता है। क्यों? क्यों स्टॉक मार्केट डर लगता है? वो क्या चीज है आपको डरावनी लगता है स्टॉक मार्केट में? गोल्ड में लॉस नहीं होता सर। अगर आप 15 दिन पहले गोल्ड खरीदते आज बेचते तो लॉस करते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन 1 मार्क आंसर। यस सर, करेक्ट? नो। सो डोंट टेल मी स्टॉक मार्केट लॉस देता है। अगर आपको नजर देखने का नजरिया बदलते हैं, करेक्ट ना, गोल्ड में लॉस होता नहीं होता सर। एक महीने पहले आपने गोल्ड लिया होता, जो भी प्राइस था, आज बेच रहे हैं वो प्राइस में नहीं है। करेक्ट ना सर? विल लीव द टाइम एंड ऑल। 15 days ago had you bought, today it is a loss। लॉस हो सकता है ना, तो वो ध्यान में रखना चाहिए। ओके, सर सेड लॉस, अग्रीड। नेक्स्ट व्हाट? और क्या है? स्टॉक मार्केट आपको डराता है। आपको किससे ऊपर डरना है ना, वो 4 करोड़ दिखा है ना, वो डरने वाली चीज है। स्टॉक मार्केट उसका मेडिसिन है। मैं समझाता हूं कैसे थोड़ी ही देर में। ओके, नो, बताइए क्यों वही स्टॉक मार्केट इज रिस्की? सर मैं बताता हूं, ऑनियन है ना, वो स्टॉक मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है कि नहीं मैडम? टोमेटो ऑनियन इज मोर वोलेटाइल देन स्टॉक मार्केट। So don't tell me stock market is volatile. Every market is volatile. Stock market भी volatile है, वो भी हम निकाल देते हैं सर। जब हम बात करते हैं वो स्टॉक मार्केट भी volatile है, वो भी वो निकाल देते हैं, इसलिए हमको स्टॉक मार्केट volatile दिखता है। Yes, स्टॉक मार्केट इज volatile। और क्या है? स्टॉक लॉस क्यों होता है सर स्टॉक मार्केट में? क्यों लॉस होता है स्टॉक मार्केट में? वो गलती आपका है, स्टॉक मार्केट का है? किसका है गलती? हमारा गलती है। स्टॉक मार्केट तो जिसके ऊपर हमको मालूम नहीं है। मैं वही आर्टिकल लिख रहा था अभी मेरा न्यूज़पेपर में, एवरी वीक एवरी संडे
मेरा एक कॉलम आता है बैंगलोर में, तो अगले संडे का मैं लिख रहा था, यही इसी के ऊपर लिख रहा था, विक्रम और बेताल, दैट इज माई कॉलम नेम। आपको याद है ना विक्रम और बेताल? आई राइट इन द अंडर दैट आई राइट कॉलम एवरी वीक। नाउ कौन सा स्टॉक खरीदना किसको मालूम है? किसी को मालूम नहीं है। ओके दूसरी चीज, अगर आपको मालूम भी पड़ा स्टॉक मैं खरीद रहा हूं, कहां से लिए आप वो स्टॉक खरीदने का टिप्स? किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी जान पहचान लोगों से, नहीं तो इधर उधर कुछ पढ़ा। करेक्ट नो? हमको वी डोंट हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ता है? आप मोबाइल खरीदने से पहले कैसे खरीदते हो? क्या क्या करते हो मोबाइल खरीदने से पहले? रिसर्च करते हो, है कि नहीं? आप ऐसे ही जो अमेजॉन ऐप में या फ्लिपकार्ट ऐप में आप दुकान गए, अरे ये मोबाइल देखना, देना भाई लेके जाओ, नहीं करेंगे ना। एक कपड़े लेने से पहले कितना हम टाइम, क्योंकि खरीदने का गलती जो है ना वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम रिसर्च करते हैं। स्टॉक खरीदने से पहले वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हमको वो करना आता है नहीं आता है? नहीं आता है, तो फिर खरीदते क्यों है सर? सी एक्सपर्ट ठीक है, करेक्ट, आई एग्री विथ यू, बट वो भी नहीं करते हम। सो स्टॉक मार्केट का एक प्रॉब्लम यह है, स्टॉक मार्केट आज और कल भी रिस्की था, आज रिस्की है, आगे भी रिस्क रहेंगे। स्टॉक मार्केट से आप वो रिस्क निकाल नहीं सकते। ओके, फ्रॉम शुगर कैन यू कांट रिमूव द स्वीट, फ्रॉम चिल्ली यू कांट रिमूव द स्पाइसीनेस, इज द नेचर। स्टॉक मार्केट का नेचर है फ्लक्चुएशन, अनसर्टनिटी। ओके, यू कैन नॉट टेक अवे दैट एस्पेक्ट, बट वो रिस्क जो है ना, वो रिस्क के अंदर हमको झांक के, देख के, समझ के क्या करना है। कैन यू टेक रिस्क अवे? नो। गाड़ी चलाना भी रिस्क है ना रोड पे, है कि नहीं? क्या करते हैं? हेलमेट डालते हैं, सीट बेल्ट डालते हैं, करेक्ट। मोस्ट प्रोबेबली वी विल ऑल्सो फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हम करते नहीं है इंडिया में। मैं सोचा बैंगलोर में ये प्रॉब्लम है, मैं सभी जगह घूम के आया इंडिया में, सभी जगह लोग ऐसे ही है। रेड है तो आगे जाओ, ग्रीन है तो फिर भी आगे जाओ। और रेड और ग्रीन का कलर ब्लाइंडनेस है लोगों को, इतना जल्दी रहता है लोगों को कहीं पे पहुंचना, फटाफट पहुंच जाना चाहिए। जो है जो देखा जाएगा, कौन ये सब फॉलो करता है? ओके, सो इसका जो प्रॉब्लम है ना स्टॉक मार्केट का, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सदियों से ये प्रॉब्लम चल के आ रहा है। मतलब क्या है? कौन सा स्टॉक खरीदूं, कब खरीदूं, कौन सा भाव में खरीदूं? करेक्ट नो? प्राइस ऑल्सो इज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक। और कब बेचूं? अगर मैं खरीदने के बाद उसका प्राइस गिर गया तो क्या करूं? वो क्या होता है मार्केट में, जब तक आप खरीदते नहीं हो, और आप खरीदो तुरंत तो गिरता है, आप बेचो तुरंत तो ऊपर जाता है। करना यूनिवर्सल ट्रुथ है। ओके, अगर आपने 100 रुपए देके एक स्टॉक खरीद लिया, मान लो आप एक स्टॉक खरीद लिया 100 रुपए देके, कैसे भी, वो कैसे खरीदा वो विल नॉट गेट इनटू इट। ओके, यू बॉट ए स्टॉक एट 100 रुपीज। ओके, वो 105 तक चला गया ऊपर, क्या करोगे आप? अभी सोच में पड़ जाता है, बेचूं या रखूं? करेक्ट नो? वो डर लगता है, अगर गिर गया तो 1 रुपया, 110 तक वेट करता है, वाह 10 तक गया, अभी टेंशन और बढ़ जाता है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा है ना, टेंशन भी बढ़ता है। 10 रुपए दिया भगवान ने, छोड़ दो भाई, कितना आया उतना काफी है। अगर गिर गया तो रात में नींद नहीं आती। बीवी ने कॉफी दिया तो कैसा है कॉफी? टी अच्छा है। अरे टी नहीं दिया भाई, कॉफी दिया है,
वो हमारा टेस्ट बड भी चला जाता है, क्योंकि लॉस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये दलदल में फंस के हम हाउ कैन वी बिकम गुड इन्वेस्टर्स? अगर मैं आपसे कहता हूं सर एक स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, आप खरीदो, रख लो, कब बेचना है भाई? 20 साल के बाद। हाँ 20 साल के, क्या मजाक कर रहा है भाई? 20 साल के बाद कौन बेचता है? मैं ये सोचता हूं लोग शादी करके कैसे 20, 30, 40 साल रहते हैं, मुझे आज तक यार पता नहीं है। एक स्टॉक 20 साल, 25 साल, पीपल डोंट अंडरस्टैंड 20-30 years ऑफ इन्वेस्टिंग। बिकॉज हमको प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान है, वेल्थ क्रिएशन पे ज्यादा ध्यान नहीं है। लेकिन यही लोग हम है ना, अगर रियल एस्टेट खरीदेंगे वो अगले साल नहीं बेचते, अगले महीने नहीं बेचते। बेचा है क्या किसी ने? आज रियल एस्टेट लिया, अगले हफ्ते बेच दिया, अगले महीने बेच दिया, अगले साल बेच, नहीं नहीं नहीं, 20 साल तक रखो। मेट्रो आएगा, मॉल आएगा, स्कूल आएगा, बस स्टैंड आएगा, ये आएगा, वो आएगा, मेरा 10 लाख 1 करोड़ होगा। कितना उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है। लेकिन अब स्टॉक खरीदते हो, हम सोचते नहीं है कि ये कंपनी ज्यादा कार बेच सकता है, ये कंपनी ज्यादा पेंट बेच सकता है, ये कंपनी ज्यादा बिस्किट बेच सकता है, ये कंपनी ज्यादा आटा बेच सकता है। ये हम ध्यान में नहीं रखते। उसी मारुति सुजुकी कार में बैठ बैठ के हम रास्ता नापते हैं, उसी 2 व्हीलर में बैठ बैठ के किक करके हम जाते हैं। लेकिन हमको सोच में नहीं आता कि इसी गाड़ी स्टॉक मार्केट में है। ये स्टॉक मार्केट जब मैं खरीद रहा हूं, वो स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है या ऊपर जाएगा। जितने लोग कार खरीदेंगे, जितने 2 व्हीलर खरीदेंगे, जितना बिस्किट खरीद के खाएंगे, जितना चॉकलेट खरीद के खाएंगे, उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट चल रहा है। वो हमारा ध्यान में नहीं आता। लेकिन रियल एस्टेट में हमारा ध्यान रहता है कि मेट्रो आएगा, ये आएगा, वो आएगा, मेरा 10 लाख 1 करोड़ होगा। सी, दिस इज वेयर वी आर नॉट बिकमिंग गुड इन्वेस्टर्स। हम स्टॉक मार्केट को एक छड़ी लेके मार के उससे दूर रहे हम लोग। अभी बोलते हैं स्टॉक मार्केट कैसे चलता है। ओके, व्हाट वी मिस्ड, आज के जो 60 इयर्स 70 इयर्स लोग हैं ना, वो लोग स्टॉक मार्केट कैसे मिस किए मैं बताता हूं आप लोगों को। क्यों समझे नहीं? व्हाई डिड दिस पीपल डोंट अंडरस्टैंड? ओके, आई टोल्ड यू नो 25 साल पहले, ओके, इंडिया वॉज अ वेरी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, करेक्ट ना? आज के तारीख में इंडिया से फास्ट एमर्जिंग इकोनॉमी। उसका मैं आपको फर्क बताता हूं। ओके, 25 साल पहले लोग कार खरीदने से पहले सोचते थे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम था, करेक्ट ना? जब मैं 1987 में ग्रेजुएशन किया, ओके, तब आई हैड टू टेक अ एप्लीकेशन फॉर्म, बायोडेटा लेके ढूंढता था, सर जॉब है क्या, सर एक जॉब दीजिए, सर एक जॉब दीजिए। उसको हम कॉमेडी कहते थे, अप्लाई नो रिप्लाई। अप्लाई करो, वेट करो, वो बुलाएंगे तो इंटरव्यू चल, नहीं तो नहीं। आज के तारीख में काम कैसा मिल रहा है? कैंपस प्लेसमेंट। सुना है ना आप लोगों ने? कंपनियां कॉलेज आके, अरे आ जाओ भाई मेरे कंपनी में काम करो, कितना पैसा चाहिए मैं देता हूं। मैं 350 रुपये में काम चालू किया 87 में, महीना सैलरी 350 रुपया मेरा सैलरी। टुडे जॉब इज कमिंग इन लुकिंग फॉर यू। क्यों? उसको कहते हैं तरक्की। देश तरक्की किया है। वो जोक था ना, मालदीव्स में 5 लाख लोग रहते हैं मालदीव्स में, पॉपुलेशन ऑफ मालदीव्स 5 लाख। वो जो कर रहे थे टीसीएस में 5 लोग काम करते हैं भाई। टीसीएस 5 लाख पीपल वर्क, मालदीव्स पॉपुलेशन 5 लाख। सो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये तीनों कंपनी 15 लाख लोगों को काम दिया है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नो? योर हैदराबाद इज अनदर ब्यूटीफुल सिटी फॉर आईटी, फार्मास्यूटिकल्स। ओके, सो कैसा काम करता है स्टॉक मार्केट देखते हैं। 25 साल पहले इंडिया वॉज बैकवर्ड, टुडे इंडिया इज इन द फॉरवर्ड। वर्ल्ड में इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री। बाय 2030 इंडिया वांट्स टू बिकम 3rd लार्जेस्ट कंट्री। वी आर एन रूट, वो रास्ते में ही है हम लोग। कैसा हो रहा है ये सब? सी, मैंने आपको बताया, समझाया भी कि 25 साल में जो 14% था फिक्स्ड डिपॉजिट रेट 6% में आ गया, जो 18-20% था लोन रेट आज 8-10% आ गया, करेक्ट ना? मतलब
entrepreneurship has increased. What is entrepreneurship? जितने लोग काम देने वाले हैं ना वो बढ़ गए हैं देश में, इसलिए काम ढूंढने वाले को काम भी मिल रहा है. करेक्ट ना? नाउ हाउ डू यू क्वांटिफाई इट? आपको मारुति सुजुकी कंपनी सबको मालूम है ना क्या करता है? मारुति सुजुकी कंपनी टैबलेट बनाता है ना, बिस्किट बनाता है. क्या बनाता है मारुति? अच्छा, सबको मालूम है ना मारुति कार बनाता है, लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट पता नहीं है ना आप लोगों को, इसलिए मैं डाउट था आपको पता है कि नहीं कि मारुति करता क्या है. मारुति इस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ध्यान से सुनिएगा. 25 साल पहले मारुति सुजुकी कंपनी ने साल भर 1.5 लाख से 2 लाख कार मैन्युफैक्चर करके बेचते थे. इन ए ईयर दे वर मैन्युफैक्चरिंग 1.5 लाख to 2 लाख कार्स. ओके. 2003 में एक an important development happened. 2003 जून मंथ में मारुति सुजुकी कंपनी ने एक बाइनोकुलर लिया. बाइनोकुलर मालूम है ना? वो हिमालय के ऊपर चढ़ के भारत देश को देखा वहां से. अरे यार, भारत देश तरक्की करने का खूब दिख रहा है. ओके, आई एम एबल टू सी दैट इंडिया इज गोइंग टू ग्रो इन द फ्यूचर. ग्रो मतलब क्या? ज्यादा लोग कार खरीदने का दिख रहा है. ओके, देयर आर शूट्स ऑफ कार, पीपल बाइंग मोर कार्स. ठीक है, क्या करना चाहिए? ज्यादा कार मैन्युफैक्चर करना है ना, अगर ज्यादा लोगों को बेचना है तो कराची बेकरी आपका, मैं एक 20 साल से आ रहा हूं हैदराबाद. ओके, सो अभी में जाके कराची बेकरी जाके उस वक्त 1-2 शॉप ही था कराची बेकरी. आज सभी जगह कराची बेकरी है. बेंगलुरु में शायद 6 या 7 कराची बेकरी है. हम हैदराबाद आके बिस्किट लेने की जरूरत नहीं है, बेंगलुरु में ही मिलता है. मतलब कराची बेकरी का धंधा बड़ा है. करेक्ट ना? बड़ा है ना उसका धंधा. धंधा बढ़ना है तो क्या करना चाहिए उनको? वो धंधे में ज्यादा निवेश करना. करेक्ट ना? बिजनेस टू डू व्हाट? यू हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी इन द बिजनेस. करेक्ट नो? बिकॉज आपका लैंग्वेज में समझा है तो आपको समझ में, इसलिए मैं कराची बेकरी का एग्जाम्पल लिया. करेक्ट ना? नो, मारुति सुजुकी हैव द सेम थिंग. अरे, देश तरक्की करने का शूट्स दिख रहा है. ज्यादा कार हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उसको बेचा करना चाहिए. अभी मारुति सुजुकी को कैपिटल चाहिए ना, पैसा चाहिए ना. ज्यादा शॉप्स, अगर कराची बेकरी ज्यादा दुकान ओपन करना, क्या चाहिए उसको? पैसा चाहिए. करना, उसको कहते हैं कैपिटल. कैपिटल कहां मिलता है? कहां मिलता है कैपिटल? करना, बैंक जाना पड़ता है. बैंक में लिया तो क्या दिक्कत है? इंटरेस्ट भरना पड़ता है. जब जो जितना भी कमाते हो वो इंटरेस्ट में दे दिया तो प्रॉफिट कम आ जाता है. इसलिए क्या किए? सर, मैं इंटरेस्ट में पैसा नहीं लूंगा, मैं नॉर्मल लोग है ना, हमारे भारत देश का जो लोग है ना, उनके पास जाता हूं, उनके सामने जाता हूं, उनसे पूछता हूं. मांगता नहीं हूं, पूछता हूं. देखो भाई, मैं मारुति सुजुकी कंपनी हूं, मुझे दिख रहा है. ओके, ज्यादा कार खरीदने का ओके एक उम्मीद दिख रहा है मुझे. ठीक है, मैं आप लोगों को मेरा कंपनी का शेयर्स देता हूं, मेरा कंपनी का हिस्सेदार बनाता हूं. करेक्ट ना? 125 रुपए में मेरा कंपनी का शेयर खरीदो. ओके, 125 रुपीज दे सेड आई विल गिव यू माई कंपनी शेयर. ओके, निवेश करो. सबने दिया क्या? नहीं, सबने नहीं दिया. जिनको रिस्क लेने का मन था, रिस्क लेने का हुनर था, राइट, उन लोगों ने मारुति कंपनी को 120 रुपीज दिया, उस कंपनी का शेयर्स लिया. उस वक्त बताइए, वो रिस्क था, रिस्क नहीं था? 2003 में रिस्क था कि नहीं था? क्योंकि आपका जो निवेश है ना, वो निवेश आपको मुनाफा कब देगा, प्रॉफिट कब देगा? जब मारुति का जो विजन है ना कि ज्यादा कार मैं बेचूंगा, वो सच निकला तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा. अगर वो सच नहीं निकला तो आपका पैसा गया. वही रिस्क है स्टॉक मार्केट में. करेक्ट ना? वो आप ब्याज में नहीं लिए, दे डिडंट टेक ए लोन, दे टुक मनी फ्रॉम यू एज एन इन्वेस्टर.
वो ध्यान में रखिएगा। ओके, 20 साल हो गया, 2003 से 2023 आ गया। 20 साल में मारुति सुजुकी कंपनी ने फ्रॉम 1.5 लाख कार पर ईयर, दे आर नाउ सेलिंग 1.5 लाख कार पर मंथ। 18 लाख कार बेच रहा है इन ईयर मारुति सुजुकी कंपनी। आज के तारीख में मारुति सुजुकी शेयर प्राइस है 13,000 रुपया। जो 20 साल पहले था 125 रुपया, आज 20 साल के बाद वो कंपनी का शेयर प्राइस है 13,000 रुपया। इसका मतलब यह है कि आपने 100 शेयर 12,500 रुपए दे के खरीदे होंगे, आज का तारीख में आपके पास 13 लाख रुपए हो सकता था। आपने कोई कंपनी में काम किया क्या? आपने कार मैन्युफैक्चर किए क्या? आपने काम जाके वो कलर देखो, अंदर जाके नेट बोर्ड ने, आपने कुछ नहीं किया। आपने पैसा दिया, अपना काम करते गए, वो अपना काम करते गए। कैसा हुआ ये 125 से 13,000 रुपया कैसे हुआ? कौन है इसका जिम्मेदार? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द शेयर प्राइस टू गो? हम लोग है ना। हम लोग कौन है? हम लोग कंज्यूमर्स, करेक्ट ना सर? हम कंज्यूमर इज व्हाट? गाड़ी खरीदते गए क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटता गया, करेक्ट ना? और नौकरी का मिलने का चांसेस बढ़ते गए। एक एक घर में, मेरा घर में 2 गाड़ी था जब माय सन वेंट अब्रॉड। वी हैड 2 व्हीकल्स इन माय हाउस, फॉर मी 1, माय सन 1। दूसरी बात यह है, स्टॉक मार्केट का एक मजेदार कहानी। कार के बारे में बात कर रहे हैं ना, कार में टायर्स भी होता है ना। कितना टायर होता है कार में? 5। स्टेपनी ले लेंगे गाड़ी, आप स्टेपनी नहीं दिया तो, करेक्ट ना? एक कार में 5 टायर होते हैं। मतलब एक कार आपने खरीदा, मतलब क्या हुआ? 5 टायर भी खरीदे आप। मतलब मारुति कंपनी ने 1 साल में 18 लाख गाड़ी बेचा। इसका मतलब क्या हुआ? 18 लाख इंटू 5, 90 लाख टायर भी बेच दिया। आज के तारीख में MRF लिमिटेड, भारत देश का एक बड़ा टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उस कंपनी का शेयर प्राइस है 1,50,000 रुपया। जब आप एक कार में बैठते हैं ना, नेक्स्ट टाइम ध्यान से देखिएगा, 26 कंपनीज का प्रोडक्ट्स रहता है एक कार में। कार हो गया, कार का टायर हो गया, वाइपर बॉश लिमिटेड 30,000 रुपया एक शेयर का। आप पानी आ गया, बारिश आ गया, अरे वाइपर लगाओ, पटा 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 करते गए वाइपर। अरे देखो, ओ ये बॉश कंपनी आपके सामने हिल रहा है। ओके, बॉनेट ओपन किया, उसके अंदर एक बैटरी है। अरे आपने देखा नहीं, बैटरी के ऊपर लिखा है एक्साइड अमरॉन, अमर राजा बैटरी का। अमर राजा बैटरी आपका शहर का ही है शायद, करेक्ट ना? इट्स आंध्रा और तेलंगाना। I always get confused which is Andhra, which is Telangana. Anyway, okay, see, lights होता है कार में, लूमैक्स इंडस्ट्रीज। हॉर्न होता है, मिंडा इंडस्ट्रीज। स्टीयरिंग होता है, सोना कोया स्टीयरिंग। फ्रंट ग्लास होता है, सेंट गोबेन। साइड ग्लास, विंडो के ऊपर होता है उसका असाई ग्लास। मैकफर्सन स्ट्रट, मदरसन सुमी इंजंक्शन। और टायर के पहिए में वो हवा डालते हैं, उसके ऊपर एक प्लास्टिक कैप होता है सर। वो जब 5 टायर बेचे, मतलब 5 कैप भी बेचे ना, किसी ने बनाया ना 5 कैप। प्लास्टिक कंपनी, छोटा कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी। देखिए एक कार मैन्युफैक्चर करने में कितने लोगों का योगदान है। आप जब एक घर बनाते हो, पेंट लेते हो कि नहीं लेते? कौन सा कंपनी का पेंट लेते हैं? एशियन पेंट मत बताइए, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट आपको डर लगता है ना। कल से मत खरीदिएगा एशियन पेंट्स। आप खुद एक लाइमस्टोन लाके, अपना ही ब्रश लेके ऐसा 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 करिए ना आपका घर को। सीमेंट लेते हो नहीं लेते हो? या रेत से बनाते हो घर? कौन सा कंपनी का सीमेंट लेते हो? ACC मत बताना अभी। 29 कंपनी प्रोडक्ट्स बी यूज्ड टू मेक ए हाउस। 29 कंपनीज।
and सब कंपनियां इंक्लूडिंग फेविकॉल 1953 में कंपनी चालू हुआ, डोंट फॉरगेट। इतना हम अपने आमने सामने रख के हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं रिस्की, अरे इसकी ऊपर नीचे लॉस हो जाता है। आप बोलिए हमें समझ में नहीं आता स्टॉक मार्केट, समझाओ भाई। ये नेगेटिव है ना, आप थोड़ा बाजू में रखो। नेगेटिव से जिंदगी एक अनसर्टन है, करेक्ट ना। कल क्या होता है किसी को पता नहीं है, तो हम क्यों स्टॉक मार्केट को इतना गंदी गंदी बात से उसको देते रहते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको लॉस 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 इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। यस, लॉस भी हुआ है, कंपनियां क्लोज भी हुई है, बंद भी हुई है, करेक्ट ना। लेकिन आप क्या देख रहे हो, करेक्ट। एक कमल है ना, कमल वो कहाँ आता है? कमल कीचड़ में उगलता है, करेक्ट ना। कमल कहाँ उगलता है? कीचड़ में उगलता है। स्टॉक मार्केट ऐसा कीचड़ का एक जगह है। आप कीचड़ को देखेंगे, आप कमल देखना भूल जाते हो। वो कमल क्या है? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, कोलगेट। स्टॉक मार्केट आपका घर में सुबह 6 बजे शुरू होता है। जब आप टूथपेस्ट लेके ब्रश के ऊपर डालते हो ना, तब स्टॉक मार्केट शुरू हो गया आपका घर में। क्योंकि कोलगेट एक लिस्टेड कंपनी है, पेप्सोडेंट एक लिस्टेड कंपनी है, डाबर मेसवाक लिस्टेड कंपनी है, प्रॉमिस, बबुल, पतंजलि जो यूज करते हो, दंत कांति, वो सब स्टॉक मार्केट का है। जब आप तेल लगाते हो सर के ऊपर, वो भी स्टॉक मार्केट से ही आया। जब आप चप्पल लगाते हो आप, वो भी स्टॉक मार्केट से ही आया। जब आप पेन लेते हो, किताब लेते हो, वो भी स्टॉक मार्केट का ही है, कंपनियां। तो स्टॉक मार्केट को इतना नजरअंदाज मत करिएगा। फिर भी जितना भी मैं उसका गुणगान करूं, फिर भी स्टॉक मार्केट रिस्की है। वो रिस्क को निकाल नहीं सकते। अभी बताइए, अब भाई रिस्क तो है भाई, उसको कैसे मैनेज करें? आप रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं? रिस्क अवॉइड नहीं कर सकते। देखिए, थोड़े दिन पहले एक एयरलाइंस का टर्बुलेंस होके पड़ा ना। नहीं, इंडिया में हुआ ना सर। वन फ्लाइट रिसेंटली अबाउट 15 days ago, टर्बुलेंस आके एक 73 इयर्स का आदमी मर गए, बाकी सब लोग घायल हुए, करेक्ट ना। आई एम श्योर 15 days बिफोर इट हैपेंड। जब आज सुबह भी मैं फ्लाइट से आया, ओके, जब वो एयर होस्टेस बोलती है ना कि सीट बेल्ट लगा के बैठो, हम क्या करते हैं, ये मुझे क्या बोलती है तो मुझे सब मालूम है। तब पता चला, आज मैं निकाला ही नहीं जब तक गाड़ी स्टॉप तक नहीं है। क्योंकि सी व्हेन एवरीथिंग इज स्मूथ ना, हमको डर का कोई सी हेलमेट नहीं पहना को क्या जाता है, सीट बेल्ट नहीं पहना, आज कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन प्रैक्टिस कर लो। मैं आज तक फोन लगाकर 2 व्हीलर में बात किया ही नहीं हूं। आई स्वेयर आई हैव नेवर डन दैट इन माय लाइफ। सीट बेल्ट नहीं लगा के मैं गाड़ी चला ही नहीं हूं, क्योंकि वो प्रैक्टिस बन जाता है ना कि मैं यहां नजदीक जा रहा हूं, वो नहीं पहना तो रिस्क नहीं है। वो गलत बात है। रिस्क इज रिस्क। ओके, सो स्टॉक मार्केट में ऐसा रिस्क विल बी देयर। हम रिस्क को मैनेज कैसे करना वो हम समझते हैं, करेक्ट ना। अभी देखिए, सबको क्या चाहिए? अच्छा कंपनी ढूंढना, खरीदना, करेक्ट ना। अच्छा कंपनी मतलब जो प्रॉफिट देने वाला कंपनी है। हम दूसरी बात यह है कि जब हम स्टॉक खरीदते हैं ना, हम लॉस होता है ये हम ध्यान में रखते ही नहीं है। हमको सिर्फ क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, ओके। लेकिन जिंदगी का उसूल है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों रहना चाहिए। हमको सिर्फ, हम जब हाईवे जाते हैं ना, वो टोल आ गया तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आप 100-120 किलोमीटर आ रहे हो, सडनली टोल 500 मीटर थे, अभी 120 में आया, अभी 0 आके वहां पे कौन कौन खड़ा है, आप ये टोल ले लो, ये बाजू का टोल जल्दी चला जाता है, आप ये ढूंढो, यहां वहां जल्दी चले जाते, करेक्ट ना। इट हैपेंस, इट हैपेंड टू मी फ्यू डेज बैक। आई वाज ट्रैवलिंग,
एक ही गाड़ी था, बाकी सब चार चार थे। मैं अरे जल्दी गया, वो कुछ खराब हो गया उसका गाड़ी, मेरे बाजू में सब लोग गए, मैं देखता रहा। देखो क्या डिसीजन लेते हैं हम लोग को। हमको क्या है, हमको खरीद लिया, किसी ने निवेश कर दिया, वो नीचे नहीं आना चाहिए, हमको लॉस नहीं होना चाहिए। ये नो वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। ओके, ठीक है, वापस आते हैं 10 मिनट में, वी विल कंप्लीट आवर सेशन। सी, आपको अच्छा स्टॉक खरीदना है कि नहीं? मैं एक टिप्स दूं, गुड स्टॉक खरीदना चाहिए। आज शनिवार है, नहीं कर, कल संडे नहीं कर सकते, मंडे सुबह 9:15 मार्केट खुलता है, खरीदना है। खरीदते हैं, वेरी गुड। एमआरएफ अच्छा कंपनी है क्या? अच्छा कंपनी नहीं है, वेरी गुड। उसका भाव कितना है एक शेयर का? 1.5 लाख रुपीस। आप आधा पौना नहीं खरीद सकते, पूरा एक खरीदना है। स्मॉल और लार्ज जो नहीं है बोल रहा हूं, ओके, पूरा बॉटल लेना है उसका। ओके, यू हैव टू बाई 1 फुल शेयर ऑफ एमआरएफ। उसका भाव कितना है? 1.5 लाख रुपया। हाथ ऊपर करिए, मंडे सुबह कौन कौन खरीदते हैं? अच्छा कंपनी बोला ना आपने, मैं दे रहा हूं अच्छा कंपनी का टिप। एमआरएफ लिमिटेड 1.5 लाख रुपीस पर शेयर। हाथ ऊपर करिए। मैडम आप खरीदते हैं? मैडम, मैडम आप खरीदते हैं? मैडम, सर, सर, किसी ने हाथ उठा, इनकम टैक्स रेड करवा दूंगा। 1.5 लाख रुपीस पर शेयर, सी इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अच्छा शेयर चाहिए, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। दूसरा शेयर देता हूं, मारुति सुजुकी 13,000 रुपया। कौन कौन खरीदता है? हाथ ऊपर करिएगा। अरे दिख नहीं रहा 1.5 लाख, 13,000 भी नहीं ले रहे आप। क्या दो? 50 रुपए का स्टॉक दो? हाँ वो अच्छा है, पर कम है तो खरीदना चाहिए, ज्यादा है तो नहीं 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 नहीं। सी, वी कांट बिकम गुड इन्वेस्टर्स। इसका इसलिए वॉरेन बुफे ने बोला, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। करेक्ट? नो, नो, जस्ट बिकॉज यू गेव ए लो प्राइस डजंट मीन द कंपनी इज गुड। जस्ट बिकॉज आपने ज्यादा पैसा, अरे ये कंपनी कॉस्टली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा गलत फहमी है, बिकॉज हमको एक स्टॉक को असेस करना आता नहीं है हमको। ओके, ठीक है, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करूं? करते हैं ना। अभी क्या करना है, हमको अच्छा कंपनी लेना है, करेक्ट ना? मैं क्या करता हूं, एक सब करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट चाहिए ना, करेक्ट? सोच लीजिए कि मैं वो एक्सपर्ट हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम दैट एक्सपर्ट। मैं क्या करता हूं, यहां से शुरू करता हूं, सर एक 500 रुपए देंगे सर, वापस आने का कोई गारंटी नहीं है, देंगे नहीं देंगे, विल यू गिव और नॉट गिव? 500 रुपीज। नो, वेरी गुड मैडम, he said no, you also said no, huh? Sir, what about you? You will give? Yes, not bad, yeah, I've already got some fame now. 500 rupees, sir, आप देंगे? Yes sir. No, you? See, your son is better, he said yes. Now madam said no, sir said no, he said no, he said yes. देखिए सर, आप बस में ट्रैवल किए हो? कहाँ गए? रिसेंटली कहाँ गए थे? आउट हैदराबाद से बाहर कहाँ गए थे? नहीं नहीं, आप बस में, ट्रेन में, बस में, एरोप्लेन, लास्ट कब गए थे? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? हाँ, जगह बताइए सर। विजयवाड़ा। कितना दूर है सर यहाँ से? एक रात का होता है। हाँ, विजयवाड़ा जब सर गए ना, गए सर, बस में गए थे सर। बस एंटर करते टाइम बस ड्राइवर को पूछा था, ड्राइवर आपका नाम क्या है? पूछा था? नहीं पूछा सर? अरे नहीं पूछा। और बस ड्राइवर से ये भी पूछा, आप मुझे सेफली ले जाते हो नहीं ले जाते हो, गारंटी दो? पूछा था? नहीं पूछा था सर? पूछा था ना सर? सर वो ड्राइवर का नाम पता नहीं है सर को, वो ड्राइवर गारंटी लेता है नहीं लेता है, वो सीट नंबर दिखाया, हाँ पीछे जाके बैठिए, करेक्ट ना? वो बस का स्क्रीन भी वो ड्राइवर ने डाल दिया। सर पूरा रात सो के सुबह उठे, विजयवाड़ा में थे, करेक्ट ना सर? मैं 500 रुपए पूछ रहा हूं, सर बोल रहा है क्यों दूं तुमको? हाँ सर, पानी पूरी खाता है, वो पानी पूरी हंडी में हाथ डाल डाल के देता है, वो हाथ धोया था नहीं धोया था आज तक पूछा नहीं। हाँ, वो समोसा खाता है, वो कौन सा दिन का तेल लगा के वो समोसा बनाया था, वो सर पूछे नहीं। मैं 500 रुपए पूछ रहा हूं, सर बोलता है कौन है वे?
क्यों दूं तेरे को? अगर तू गवा दिया तो? सी सर, आई एम टेलिंग यू, दिस थॉट प्रोसेस हैज टू गो फर्स्ट, बिकॉज वी हैव टू ट्रस्ट ए ड्राइवर. जब मैडम आपने पानी लेके आए ना मैडम, यू जस्ट ड्रैंक विदाउट सीइंग, करेक्ट ना मैडम? आपने पी लिया ना जी, देखिए देखिए हाउ मच ट्रस्ट वी हैव, करेक्ट ना? वी डिडंट चेक अरे कौन सा पानी बनाया, कहां से पानी बनाया, हमको बिकॉज वो ट्रस्ट चाहिए ना, करेक्ट ना मैडम? द ट्रस्ट इज एसेंशियल, अदरवाइज वी कैन नॉट लिव ऑन दिस अर्थ. सो व्हेन आई एम सेइंग 500 रुपीज, आई एम सेइंग, बता रहा हूं ना, मैं आपको एमआरएफ शेयर खरीदूंगा. इसलिए पूरे लोग इन्वेस्ट नहीं बनते. इसलिए रिमेंबर मारुति सुजुकी वन कंपनी आज 120 रुपीज देना, अरे जा भाई, कहीं इंडिया में कौन कार खरीदता है, मैंने खरीदा नहीं, तुम खरीद के लेके मेरा पैसा बर्बाद करोगे, जाओ जाओ जाओ. ऐसा बहुत लोग बोले. थोड़े ही लोग पैसे दिए थे. रिस्क टेकर्स आर वेरी लिमिटेड इवन टुडे. ओके, नाउ 500 रुपए क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे 1 लाख लोगों के साथ जाके, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है ना वो सबका प्रॉब्लम है. मैं यहां से बाहर जाऊं, लोगों से पूछो आपको स्टॉक खरीदना आता है? नहीं आता है भाई, लेकिन खरीदना चाहते हो? हाँ चाहता हूं. सी, जो आपका प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम इज देयर फॉर अदर्स ऑल्सो आउटसाइड. क्यों? मैं क्या करता हूं, 1 लाख लोगों को इकट्ठा करता हूं. ओके, सबसे 500 रुपया मैं लेता हूं. मेरे पास कितना पैसा हुआ अभी? 5 करोड़ रुपया मैंने लिया, करेक्ट ना? अभी मैं क्या कर सकता हूं? ओके, मैं दिखाता हूं क्या कर सकता हूं. पास 1 लाख लोगों का 500 रुपया है, मेरे पास 5 करोड़ रुपया है. स्टॉक मार्केट में कितना कंपनीज है? 5000 कंपनीज है स्टॉक मार्केट में. 5000 कंपनी, लाइक सुपर मार्केट. ओके, इसमें कौन सा स्टॉक खरीदूं? वो बहुत डिफिकल्ट काम है, करेक्ट ना? मैंने क्या लिया, देखिए, आपको जो कंपनी जान पहचान है वो क्विकली सुनाता हूं. टीवीएस मोटर सुना है? मारुति सुना है ना? ओके, देन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, लार्सन एंड ट्यूब्रो, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, रेड टेप, सीमेंस, मुथूट फाइनेंस, एसबीआई कार्ड्स, ब्रिटानिया, एसबीआई लाइफ, इन्फोसिस, एचसीएल, रिलायंस, सन फार्मा, डीमार्ट, जोमैटो, नाइका, वेस्ट साइड, इट इज ट्रेंड, भारती एयरटेल. सुना है कि नहीं सुना है इस कंपनी का नाम? हम इस्तेमाल करते हैं ना इस कंपनी का सामान. देखिए, आपने जो 500 रुपए दिया, मैं 50 कंपनियों का स्टॉक्स खरीदा. अच्छा है कि नहीं? आप खरीद सकते थे क्या? आपने बस ड्राइवर को जैसा आपने बिलीव किया, ट्रस्ट किया, यू आर ट्रस्टिंग मी, बिकॉज यू हैव टू ट्रस्ट एन इलेक्ट्रिशियन, a plumber, a carpenter, a chef, correct? No, they are experts in their field. Like that, you have to get an expert. And how much did I ask you? अगर 500 रुपए का नुकसान भी हुआ, आप रोते हो क्या? 500 रुपए lose, are you going to cry? आज तक ऐसा हुआ नहीं है. ओके, 500 रुपए किसी ने डाला, वो गवाया, आज तक हुआ ही नहीं है. Unless you are in a hurry, आज डाल के कल ले रहा हूं भाई, वो तो आपका प्रॉब्लम है. देखिए, ये 50 कंपनी है ना, इसको कहते हैं शक्ति. 50 पीपल टुगेदर, 50 कंपनीज टुगेदर. इसमें से अगर 3, 4, 5 कंपनियां नुकसान भी किए, आपको कुछ फर्क लगता है क्या? फर्क पड़ता है क्या? अगर आपने एक ही स्टॉक लिया तो क्या होता था? अगर वो गिर गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. वो 50 कंपनीज में 3, 4, 5 कंपनियां अच्छा नहीं किया, आपको फर्क पड़ता है क्या? फर्क नहीं पड़ता. अगर आप सोचते हो कि 50 कंपनी एक ही बार गिर गया तो हो सकता है क्या ऐसा? अगर हो सकता है बोलेंगे तो मैं बोल जाता हूं, अगली बार जब आप कार खरीदते हो, वो कार कंपनी को बोलना 5 स्टेपनी दे देना भाई, चारों टायर पंचर हो गया तो नहीं ना. सो ऐसा गुंजाइश बहुत 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 कम है. लाइक दैट, व्हेन यू आर हैविंग 50 कंपनीज विथ यू, ऑल सी डाइवर्सिफिकेशन देखिए, करेक्ट ना? देखिए, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल, बैंक, सीमेंट, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एंटरटेनमेंट, फर्टिलाइजर, फाइनेंस, फूड प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस, रियलिटी, फार्मेसी. डाइवर्सिफिकेशन देखा आपने? अलग अलग सेक्टर्स में, वो सेक्टर्स में अलग अलग कंपनी में
पैसा डालें। वो आपने बोला कि क्या वोलेटिलिटी है? प्राइस ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे, करेक्ट ना? दिस फ्लक्चुएशन मैं लास्टली ये दिखाता हूं और हमारा सेशन खत्म करते हैं। ये सीख लिए तो आपको अंदाज आ जाता है कैसा काम करता है। देखिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? लॉस का प्रॉब्लम है। आपको क्या प्रॉब्लम है? फ्लक्चुएशन एक प्रॉब्लम है, करेक्ट ना? अभी देखिए, फ्लक्चुएशन हमारा दोस्त कैसा बन सकता है निवेश में? जो मैंने आपसे कहा कि आपने 500 रुपए दिया, 1 लाख लोगों ने दिया, 5 करोड़ हो गया, इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड ना, क्योंकि सब लोग इकट्ठे। आपको ने सर को मालूम नहीं है, सर को ने आपको मालूम नहीं है, आपको ने सर को मालूम है, ये कौन है मैडम को मालूम नहीं, करेक्ट ना? बट ऑल ऑफ सिटिंग इन द सेम रूम ना। जब आप बस में जाते हो, बाजू में जो बैठा आपको मालूम है क्या? नहीं है। ट्रेन में जाते, आज एरोप्लेन से आया, मेरे को बीच में सीट दिया था, इधर यहाँ एक बैठा था, यहाँ एक बैठा था, पता नहीं, बिकॉज वी आर ऑल सिटिंग इन द सेम एरोप्लेन, बट यू आर ऑल कमिंग टू हैदराबाद। रिस्क भी हम लोग इकट्ठा ले रहे थे, अगर कुछ हो गया तो सबका वाट लगेंगे, करेक्ट? अच्छा क्या है? डेस्टिनेशन पे आना, तो रिस्क रहता ही है ना। लाइक दैट निवेश में भी द रिस्क इज देयर। प्रॉफिट आएंगे तो सब भुगतेंगे, अगर लॉस हो गया तो फिर भी सब भुगतेंगे। दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। वो इसके लिए एक म्यूचुअल फंड कंपनी रहता है, उस म्यूचुअल फंड मैनेजर्स रहता है, करेक्ट? एक आपने होटल रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट का किचन में एक शेफ रहता है, करेक्ट ना? बहुत सारे लोग खाना पकाते हैं, करेक्ट ना? आपका जैसा टेस्टी फूड चाहिए वो बनाते हैं, करेक्ट ना? लाइक दैट इतने तरकारी यूज करते हैं, सो मेनी थिंग दे यूज टू मेक दैट डिश। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में दे टेक ऑल द स्टेप्स टू प्रिपेयर अ गुड डिश। वो डिश होता है पोर्टफोलियो, करेक्ट? वो पहले देखा, वो पोर्टफोलियो होता है, करेक्ट ना? अभी देखिए, मैं आप लोगों से दरख्वास्त की कि सर मैडम 1000 रुपया डालिए महीना महीना, सिर्फ 1000 रुपया डालिए महीना महीना। कब तक डालो? इस क्यों लॉन्ग टर्म कहते हो दिखाता हूं। वाई वी से लॉन्ग टर्म इन इक्विटी, ओके? क्यों कहते हैं फ्लक्चुएशन, लॉन्ग टर्म, लॉस? क्यों म्यूचुअल फंड को हम सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कहते हैं, वो भी दिखाता हूं मैं आपको अभी, करेक्ट ना? 1000 रुपया डालने के लिए कौन तैयार है यहां पे? एनीवन पुटिंग 1000 रुपीज पर मंथ? वेरी गुड। भागना नहीं, अभी मैं जिगाता हूं। डोर, दरवाजा बंद है, बाहर पुलिस खड़ी है, आपको बाहर नहीं जाने देंगे, करेक्ट ना? 1000 रुपया डालना चालू किया, महीना 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 1000 रुपया डालना है। कब तक डालना है? जब तक सर रिटायर नहीं होंगे तब तक डालना है। रिटायरमेंट के लिए आपको कितना पैसा? आज नींद नहीं आएगा महासर को, आज रात 4.5 करोड़ रुपया, 4.5 करोड़ रुपया, करेक्ट ना? वही आता रहता है सर को अभी, करेक्ट? नाउ सर हैज टू पुट फॉर लॉन्ग टर्म, करेक्ट ना? 1000 रुपये डाल रहे हैं आप लोग लॉन्ग टर्म तक, करेक्ट ना? ओ यहां बैठ के पूरा खत्म कर दिया मैंने ही। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आफ्टरवर्ड्स आपने पूछा, बस 1000 रुपया दिया महीना महीना, 12 महीना हो गया, करेक्ट? मेरा स्टेटमेंट दो। पूछते कि नहीं पूछते? करेक्ट ना? आपका बेटे का बेटी का मार्क्स कार्ड देखना चाहिए ना, क्या क्या वो मार्क्स कार्ड देखिए ध्यान से। 1 साल हो गया, आपने पूछा जिलानी साहब से, ओके? आपको स्टेटमेंट भेजा, देखिए आपका स्टेटमेंट ऐसा दिख रहा था। क्या हो गया? क्या हो गया है? प्रॉफिट या लॉस? क्या करेंगे अभी? इसको क्या? सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई वापस नहीं देने वाला ये लॉस आपको। अगर आप 12 महीने के बाद उसी दिन आप निकालेंगे पैसा, आप कितना डाले? 12,000 रुपया। कितना है आपका वैल्यू? 10,000 रुपया। 2,000 रुपया गया आपका, कोई वापस देने वाला नहीं। एक ही आदमी वापस देता है, मैं बताता हूं कौन है।
क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे या निकाल देंगे? आगे जाके क्या हो सकता है मुझे मालूम नहीं है। क्या करेंगे? वेट और गेट आउट? हाँ, वेट। क्यों वेट कर रहे हैं? लॉस हुआ इसलिए वो वापस लेना है ना लॉस आपको। ये गलत बात है। हाँ, ये गलत बात है। आपको उम्मीद नहीं है, ये लॉस कौन उठाता है भाई, उस इसलिए वेट कर रहे हैं आप। करेक्ट ना? ठीक है, आगे वेट किए और 1 साल वेट करेंगे। हाँ ठीक है, और 1 साल किए, मतलब 24,000 इन्वेस्ट किए। 2 साल के बाद ये हाल हुआ था। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अभी क्या करेंगे आप? नुकसान ज्यादा हो गया 1 साल वेट करने के बाद, क्या करेंगे अभी? वेट। वाह, क्या करेंगे सर? विड्रॉ। लॉस नोबडी विल गिव यू बैक सर। क्या करेंगे मैडम? वेट। इतना शक्ति है वेट करने का। मैडम क्या करेंगे मैडम? वेट। नॉट बैड। ओके, तीसरे साल 3 साल तक आप निवेश किए, प्रॉफिट नहीं देखा। 3 साल तक नुकसान भरना भुगतना इतना आसान नहीं है, याद है ना आपको? आज सुबह मैं जब एरोप्लेन आ रहा था, सोचता हूँ जब वो लड़कियां होता है ना एरोप्लेन में, वो एयर होस्टेस, करेक्ट ना? ऐसा ही रहता है ना, करेक्ट ना? यहाँ एक, वहाँ एक, पीछे एक, 3 एयर होस्टेस रहता है, करेक्ट ना? वो एरोप्लेन चालू टाइम पे क्या करते हैं वो लोग? अनाउंसमेंट करता है। क्या अनाउंसमेंट करता है? करेक्ट ना? एग्जिट, दाएं एक एग्जिट, बाएं एक एग्जिट, करेक्ट ना? वो अगर कुछ हो गया तो ऊपर से नीचे आता है, उफ 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 करना, किसी को ये करना वो करना बोलता है ना, किसी ने उसको ध्यान से सुनता नहीं है। पर्टिकुलरली मर्द लोग है ना, उसको देखता रहता है को क्या बोली, गए ही नहीं कान के अंदर। ओके, अगर 1 घंटे के बाद टर्बुलेंस हुआ ना, तो अरे क्या बोल रही थी वो राइट बोली, लेफ्ट बोली, ऊपर बोल, नीचे बोली, नीचे से आते ऊपर से आते ऑक्सीजन, किसी को याद नहीं रहता। क्योंकि जब दिक्कत होती है ना, तब वो भुगतना का टाइम आता है ना, इतना आसानी से कंटिन्यू करता हूं, हम बहुत मुश्किल होता है। 3 साल तक नष्ट को एक्सेप्ट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि आप आज रिसेंटली निवेश करना शुरू किए, अगर आप शुरू करने वाले हो, आगे चल के आपका रास्ता जो है ना, वो इतना आसानी का नहीं रहता। इसलिए दिखा रहा हूं, क्योंकि बाद में मैं आपसे मिलूंगा नहीं, मेरे पीछे से आप मुझे गाली नहीं देना, अरे किसी आके बड़ी अच्छा दे के चला गया, लास्ट का बताया ही नहीं, वो उसे नहीं चाहिए मुझे। इसलिए पीएचडी इसलिए नहीं किया मैंने। मैं पीएचडी किया म्यूचुअल फंड में, क्योंकि ये समझ के आपके सामने आके 800 सेशंस किए हुए समय आज तक 7 साल में 72 जगह घूमा हूं। कल भी मेरा सेशन है कोयम्बतूर में, अगले हफ्ते 4 सेशन है बैंगलोर से बाहर। क्योंकि आपको झूठ बोल के या गलत इंफॉर्मेशन दे के जाना, क्योंकि आपका आगे का इन्वेस्टमेंट का रास्ता ऐसा हो सकता है। जब होते हैं, जब पैनिक नहीं होना। मैं बताया कि लॉस होते हैं, लेकिन लॉस किसने आपको वापस देते हैं? somebody has to give that money back to you ना, करें ना? मैं दिखाता हूं कौन दिया वापस आपको। 4था साल देखिए, दिस इज 4 years। 5th ईयर जो लॉस किए थे उससे बहुत गुना ज्यादा आपको पैसा किसने वापस दिया? पैसा आपको किसने दिया वापस? मार्केट ने ही दिया। करंट टाइम ऑफ कोर्स। मार्केट किसने गवाया था आपका पैसा? मार्केट had lost your money. Who gave the money back to you? Market only gives the money back to you. Okay? So this is called volatility. क्या है volatility? आपने जब शुरू किया था ना,
देखिए कौन सा नेट एसेट वैल्यू में था, ये 929 दिखा रहा है। वो 50 स्टॉक्स का एक प्राइस होता है ना, वो 50 स्टॉक्स का प्राइस आईटीसी का एक प्राइस होता है, इन्फोसिस का एक प्राइस होता है, एचडीएफसी बैंक का प्राइस होता है, करेक्ट ना। वो प्राइस जब ऊपर जाता है नेट एसेट वैल्यू ऊपर जाता है, वो गिरता है नेट एसेट वैल्यू गिरता है, इसलिए उसको नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। वो 50 स्टॉक्स का जो मूल्य होता है वो ₹9.20 दिख रहा है। सो आगे जाके देखिए 1 साल के बाद कितने में हुआ नेट एसेट वैल्यू, ₹7 में गया। सी अप एंड डाउन जो कहते हैं ना स्टॉक में, यही है। 2 साल के बाद क्या हुआ, वो ₹9 से ₹5 तक। लेकिन ये ₹1000 डाले ना, ये 24th मंथ कितना यूनिट्स मिला आपको, 194 यूनिट्स मिला। जब ₹9 तक कितना यूनिट्स मिला था आपको, मतलब मार्केट गिरने से फायदा है कि नहीं है, करेक्ट नो। वो प्याज है ना, ऑनियन का भाव रिसेंटली गया था ₹200, करेक्ट ना। कितने खरीदे मैडम, व्हेन ऑनियन बिकम ₹200 पर किलो, कितने खरीदे आपने, 250 ग्राम, करेक्ट ना। ₹25 में आ गया तो घर में प्याज का चटनी, प्याज का चपाती, प्याज का परोठा, प्याज का सांभर, प्याज का सब प्याज का ही होता है, क्योंकि कम दाम में आप ज्यादा खरीद सकते हो, ज्यादा दाम में आप कम खरीदते हो। हम बिजनेस में वैसे ही करता है ना, करेक्ट। स्टॉक मार्केट म्यूचुअल में ऐसा ही होता है। जब एनएवी ज्यादा होता है आप कम यूनिट्स खरीदते हो, जब एनएवी कम आता है आप ज्यादा यूनिट खरीदते हो, कम और ज्यादा। सो फ्लक्चुएशन में आपका फायदा है। लास्ट में क्या हुआ, अगर सर को रिटायरमेंट तक रुकना है ना, रुकना है, करना है, तो क्या हो सकता है, देखते हैं लास्ट में। देखिए आप हजार रुपया 29 ईयर्स तक डालते गए। जब यू आर 31 ईयर्स आपने चालू किया, 30 साल के बाद रिटायर हुए, देखिए आपका इन्वेस्टमेंट है 3.53 लाख। ओके, देखिए कितना हुआ है, क्लोज टू 2 करोड़ रुपया। ये 30 साल में क्या हुआ है देश में, मारुति सुजुकी कंपनी ने 1.5 लाख कार साल भर में से 1.5 लाख कार पर मंथ मैन्युफैक्चर कर रहा है, करेक्ट नो। काम ढूंढते थे, अभी हम काम हमको ढूंढ के आ रहा है। सी, देश का तरक्की के साथ आपका निवेश भी बढ़ रहा है, करेक्ट। बीच में रिस्क भी होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म क्यों कहते हैं हम, वो लॉन्ग टर्म में ऊपर नीचे रुकना चाहिए। हमको जल्दी में वेल्थ क्रिएशन नहीं करना चाहिए, 1 स्टेप एट ए टाइम। एक एक बूंद लेके एक समुंदर बनता है। ओके, सो आप निवेश करने टाइम पे, इसलिए सरकार ने क्या किया, ₹500 महीना, मतलब एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी निवेश कर सकता है, कोई भी निवेश कर सकता है। जब बच्चा पैदा होता है, वो बच्चे का नाम पे आप गार्डियन बन के निवेश करना चालू कर सकते, क्योंकि बच्चे बड़े होने में 25 साल लगते हैं। उनका खुद का पैर के ऊपर खड़े होने तक माँ बाप को उसके पीछे निवेश करना पड़ता है, समय का निवेश करना पड़ता है। वही समय आप निवेश करेंगे तो बच्चे के साथ वो भी बढ़ता है, क्योंकि देश तरक्की से आगे बढ़ता है। वो तरक्की कहाँ दिखता है हमको, जब कंपनियां ज्यादा बेचता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, 6 महीने में बच्चे को सेरिलैक पिलाते हैं। वो सेरिलैक कौन सा कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, नेस्ले इंडिया लिमिटेड। 25,000 रुपया एक शेयर प्राइस है, करेक्ट ना। मतलब कंज्यूमरिज्म से चलता है मार्केट, जितना हम खरीदते हैं। इसलिए बोलो या ना बोलो, जब सिगरेट फूकता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी को देख के। क्यों, आईटीसी कंपनी का शेयर बढ़ेगा, इसलिए मैं जाके नहीं बोलूंगा फूकना मत भाई, क्योंकि मैं नहीं फूकता, लेकिन फूके तो अच्छा, क्योंकि आईटीसी का शेयर होल्डर हूं। दूसरी बात है, जो फूकता है ना, वो आगे जाके ही विल गेट सिक। फार्मा कंपनीज का भी शेयर खरीदता हूं, क्योंकि उसका भी फायदा होता है। शेयर मार्केट को करंट ऐसा कर सकते हैं हम। इट्स ऑल अबाउट कंजम्पशन। तो देश तरक्की कैसा करता है,
हम जितना खरीदते हैं, जीडीपी कहते हैं ना, उससे देश आगे बढ़ता है। देश आगे बढ़ने का क्या है मेजरमेंट? स्टॉक मार्केट कंपनी का प्राइसेस जब बढ़ता है ना, दैट्स ऑल। जब देश अच्छा नहीं कर, यूजुअली स्टॉक मार्केट डोंट डू वेल ड्यूरिंग दैट टाइम। When stock market does well or economy doing well, stock market also is doing well. So देश के साथ, इसलिए म्यूचुअल फंड क्यों इंट्रोड्यूस किया जो स्टॉक मार्केट डायरेक्टली जाना मुश्किल होता है। ओके, द्वंद्व में पड़ जाते हैं हम लोग, अरे ये स्टॉक खरीदो, वो स्टॉक कब खरीदो, खरीदो। सो ये सब कंफ्यूजन से हमको म्यूचुअल फंड में क्या किया, म्यूचुअल फंड कंपनी है, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स है, वो फंड मैनेजर्स आर हाईली क्वालिफाइड, IIM, IIT, CFA, ICAA, CA, ओके, वो दे वुड हैव स्टडीड अ लॉट, इंटेलिजेंट पीपल, एजुकेटेड पीपल, स्किल्ड पीपल, ओके, सो दे मैनेज इट। 1963 में शुरू हुआ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, आज 60 साल का सेलिब्रेशन कर रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। 55 लाख करोड़ वर्थ ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड। आप महीना महीना कर सकते हो और आप लमसम कर सकते हो। महीना महीना मतलब जब रिकरिंग डिपॉजिट करते हो ना बैंक में, आप महीना महीना, लाइक दैट इन म्यूचुअल फंड व्हाट्स कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, महीना महीना डाल सकते हो। आप उसे कब तक डालो? एटलीस्ट इक्विटी में डालेंगे तो कम से कम 5 साल तक रुकना चाहिए, ओके, बिकॉज लॉन्ग टर्म में, लाइक मैंने दिखाया आपको, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ज्यादा रहता है। और जब हमने सेशन शुरू किए, सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि गोल्स होता है ह्यूमन लाइफ में। सो चिल्ड्रन हायर एजुकेशन इज ए गोल, चिल्ड्रन मैरिज इज ए गोल, रिटायरमेंट इज ए गोल। सो गोल हम जब चूज करते हैं, वो निवेश करने का एक एनकरेजमेंट अच्छा मिलता है, ओके। लमसम FD जैसा, ये वो 5,000 रुपया मिनिमम है, ओके, डाल सकते। कब तक डालेंगे? अगेन मिनिमम 5 years इज व्हाट इट्स, यू हैव टू वेट एटलीस्ट, ओके, टू सी द बेस्ट रिजल्ट। लॉन्गर द बेटर इज व्हाट इज द इक्विटी। कंपनियां काम करने के लिए उसको भी टाइम चाहिए, उसको भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, करेक्ट ना? दैट्स हाउ इट वर्क्स। फाइनली आप निवेश करने के टाइम पे, अच्छा वो सॉरी एक चीज दिखाना भूल गया, हाँ ये देखिए, लास्ट इक्विटी फंड में अगर आप 5 साल तक डालेंगे तो डेट फंड जैसा एक फंड होता है, ओके, लिक्विडिटी जल्दी मिल सकता है। वो 5 साल तक निवेश करेंगे तो डेट फंड आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको समझाएंगे। 5 साल के बाद आपको निवेश करना है तो ये कैटेगरीज होता है। वो एरो मार्क देखिए, एरो मार्क रिस्क दिखाता है। वो नीचे से देखिए, पहला एंट्री लेवल रिस्क होता है इंडेक्स फंड। भारत देश का और भारत स्टॉक एक्सचेंज का फर्स्ट टॉप 50 कंपनीज या 30 कंपनीज को लेके एक इंडेक्स बनाते, निफ्टी 50, सेंसेक्स ऐसा है, उसमें निवेश करेंगे तो आप इंडेक्स फंड में डाल सकते हो। नहीं 5,000 कंपनियां हैं, क्यों ये 50 कंपनी में इन्वेस्ट करो, मुझे और थोड़ा स्टॉक्स में निवेश करना पसंद करता हूं। देखिए, देन आपको आता है आपका एज को, आपको रिस्क लेने का जो शक्ति है, वो सब देख के आपको एक पोर्टफोलियो बना के आप उसमें निवेश कर सकते हैं। फाइनली आपको निवेश करने के समय पे कोई भी निवेश कर सकता है। अप टू 18 years you can invest as a हाँ 18 years के बाद आप खुद निवेश कर सकते हो। बिफोर 18 years यू कैन इन्वेस्ट इन द पेरेंट्स और द गार्डियन नेम, ओके, इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि पैन कार्ड चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए और बैंक अकाउंट चाहिए और बैंक में पैसा भी होना चाहिए, करेक्ट ना? ये सब है तो 5-10 मिनट, एक दिन में आपका KYC हो जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और निवेश करते समय नॉमिनेशन इज टुडे मैंडेटरी। निवेश करने के बाद अपने फैमिली मेंबर्स को बताइएगा कि ये निवेश किया हो, ओके। आप उसको गुमराह रख के आप करेंगे, किसी को पता नहीं है, वो दिक्कत बात हो सकती है। अगर आपको नॉमिनी किसको बनाओ, आपको कोई सोचना, अप टू 1 लाख रुपया आप टैक्स फ्री होता है। 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, वो प्रॉफिट के ऊपर 10% आपको
टैक्स भरना पड़ा। अगर आपने 1 लाख रुपए डाला, 1 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए आ गया, वो 1 लाख रुपए प्रॉफिट पूरा टैक्स फ्री है। अगर 1 लाख रुपए डाला, 2,10,000 रुपए आपने कमाया, 1 लाख रुपए टैक्स फ्री होता है, 10,000 के ऊपर आपको 10% का टैक्स भरना पड़ता है, क्योंकि इक्विटी हम रिस्क लेते हैं, इसलिए सरकार ने कम टैक्स उसके ऊपर डाल रहा है। ओके, अगर आपको कुछ ग्रीवियंस है इन निवेश करने के बाद, आप सेबी ने, मार्केट रेगुलेटर है सेबी, that is Securities Exchange Board of India, okay, it's the police of the securities market. They manage the entire regulatory aspect of the stock market mutual fund industry. अगर आपको कुछ दिक्कत है, अगर स्टेटमेंट नहीं मिला या डिविडेंड नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, आपको है तो अगर आपका म्यूचुअल फंड कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं किए, आप एक वेबसाइट दिया है सेबी ने कॉल्ड scores.gov.in, वहाँ पे आप लॉग इन करके आपका जो भी कंप्लेंट है वहाँ पे आप डाल सकते हो। सेबी विल एड्रेस द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। एनी क्वेश्चंस, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। सर। यस सर। There is risk here. There is a risk, करेक्ट सर। and people are trusting you. For example, sir, 100 people or 1,000 people trusted you. What will be the case if that did not become fruitful? Mutual fund company, what step they take in that case? म्यूचुअल फंड कंपनी? What assurance they give, or what? नो एश्योरेंस सर। Like suppose सर एक घर है, एग्जाम्पल घर है, घर के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, एग्जाम्पल है, करेक्ट, और इसका लास्ट का इंश्योरेंस ना, एनीथिंग सच थिंग। नो इंश्योरेंस, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज नॉट इंश्योरेबल, क्योंकि वो स्पेक्युलेटिव होता है। स्पेक्युलेटिव मतलब आगे क्या होता है पता नहीं है, करेक्ट ना सर। म्यूचुअल फंड कैसा वर्क करता है ना सर, स्टॉक मार्केट है ना, करेक्ट नो, ये बस ड्राइवर एक बस दिया उसको, वो बस चलाना है उसको, करेक्ट ना, वो कैसा चलाता है उसके ऊपर निर्भर होता है, करेक्ट नो। लाइक दैट स्टॉक मार्केट में 5,000 कंपनीज है सर, करेक्ट ना। वो कंपनीज खरीदने का टाइम और खरीदने से पहले मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, करेक्ट, रिसर्च करता हूँ, इसलिए मैं वो स्टॉक खरीदता हूँ, करेक्ट ना। मैं अकेला नहीं करता हूँ, ओके। जब आप फूड ऑर्डर करेंगे वो एक कुक नहीं बनाता, करेक्ट ना, वो उसको एक टीम रहता है, वो सब बना के आपके टेबल पे लेकर, लाइक दैट वो पोर्टफोलियो मैंने दिखाया ना, वो पोर्टफोलियो जैसे कैसे बनाया, दे हैव ए टीम ऑफ रिसर्च, फंड मैनेजमेंट टीम है, वो सब एक प्रोसेस फॉलो करता है, करके एक पोर्टफोलियो बनाता है, करेक्ट ना। वो पोर्टफोलियो आज के तारीख में जब मैं लिया ना, जब मेरे हिसाब से, फंड में हिसाब से वो अच्छा था, ओके। खरीदने के बाद मैं सोऊंगा नहीं, अरे खरीद लिया भाई, करेक्ट ना, वो मॉनिटर करते हैं। अगर सडनली देखिए मंडे को क्या हुआ मार्केट में, ट्यूसडे में क्या हुआ मार्केट को, वो फंड मैनेजर क्या कर सकता है, करेक्ट ना, इज जस्ट ए मैनेजर। सडनली वो बस लेके लिया, बारिश आ गया या कुछ रास्ते में कुछ वो गड्ढा आ गया, वो ड्राइवर क्या कर सकता है, लाइक दैट ना। सो लॉस क्यों, अब लॉस को कैसे आपने उसको ओवरकम कर सकते हैं, करेक्ट ना। अगर मंडे डाल के आप ट्यूसडे निकाल रहे हो, इस हफ्ते आपको लॉस पक्का था, लेकिन 3-4 दिन आप वेट किए होंगे, जो भी लॉस था वो वापस आ गया, करेक्ट ना। वो कंट्रोल किसके हाथ में, आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है वो, करेक्ट ना सर। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में ये सब। जब बैंगलोर से मैं हैदराबाद से बैंगलोर जाता हूँ ना, ये 550 किलोमीटर का एक रास्ता है, करेक्ट ना सर। आई टेक एवरी स्टेप टू सी दैट मैं आई विल रीच, बट इन बिटवीन कुछ होता है, सो इज नॉट। सो फंड मैनेजर विल डू विथ ऑल गुड इंटेंशन, विथ ऑल गुड नॉलेज, बियॉन्ड उनके हाथ से आगे कुछ हो गए तो लॉस हो सकता है, लेकिन पहले भी मैं दिखाया ना सर, अगर आपने 95 जनवरी में शुरू किए, 2 साल के बाद आप निकाल रहे, लॉस ही आप लेते थे, लेकिन आपने वेट किया होता तो वो लॉस जो मैंने किया था ना, वो वापस आ गया आपको। दैट्स व्हाट अंडरस्टैंड इट, दैट्स व्हाई टाइम इज योर बिगेस्ट फ्रेंड इन इक्विटी इन्वेस्टिंग, प्रोटेक्शन प्लान्स, ओके, करेक्ट। बट विथ म्यूचुअल फंड देयर इज नो प्रोटेक्शन प्लान,
No, it's that nature of the asset is like that, na. Okay, you can't guarantee because sir, आप जब when will you enforce that law? For example, let's say मैंने आपको इंश्योरेंस करा भी दिया, करेक्ट ना? अगर आप ट्यूसडे आके मेरा नुकसान हो गया भाई, पैसा वापस दे दो. कल आप मैं बहुत 4 दिन आप रुकते तो वापस आता, मेरा आपको पैसा दे दिया, वो लॉस हो गया ना सर मेरा. दिस इज द ब्यूटी ऑफ इक्विटीज, दैट इज सर मार्केट ही अनसर्टन है, मैं आपको मेच्योरिटी कैसे दे सकता हूँ? करेक्ट ना? सी आई एफडी रिस्क नहीं, मेच्योरिटी दे सकता हूँ. जब आप गोल्ड लिए ना, कौन आप सर बताइए सर, आपने मलबार गोल्ड जाके गोल्ड लिया, वो प्राइस नीचे आ गया तो इंश्योरेंस देगा आप वापस आपको? 7,000 में आपने सोना खरीदा, वो 6,000 पे आ गया, वो वापस इंश्योरेंस करो, किसी ने करता है क्या? आपने रियल एस्टेट लिया, आपको उसका प्राइस नीचे आ गया, वो बेचने वाला आपको इंश्योरेंस किया क्या? स्टॉक मार्केट क्यों सर, क्या सवाल पूछ रहे सर स्टॉक मार्केट को? नहीं सर, वो गलत है सर, नहीं हो सकता सर. स्टॉक मार्केट को बहुत नजरअंदाज करते हो सर आप. एनी अदर क्वेश्चंस फ्रेंड्स? खाना रेडी है सर? Ready? Okay. Thank you so much for your time. Hope it helped you to understand how mutual fund or the market works. Thank you. Take care. Have a nice day. Bye.